Hello to everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about last example number 17. This is related to drawings account. Okay, then other are things same. We read on 1st April 2016, Ranjana, Sushma and Josephs introduced capital of 1,28,000, 96,000 and 80,000 respectively and commence a business. यानी कि यहाँ पे रंजना, जोसेफ और सुषमा की कैपिटल अकाउंट दी है, कैपिटल दी है, उन्होंने उस कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट किया था. सो वी राइट डाउन हियर 1st April 2016. Here don't we write down by balance because of here start this business. So by cash account because here वो लोग कैश लाके उनका बिजनेस शुरू कर रहे हैं. सो रंजना की कैपिटल यानी कि रंजना कितनी कैश लाई है 1,28,000, सुषमा 96,000 और जोसेफ 80,000 लेके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है. ओके, देन रीड सुषमा हैज विड्रॉ 8,000 ऑन 1st October 2016 while Ranjana has withdraw ₹1,200 at end of the month. यानी यहाँ सुषमा का जो ड्राइंग्स है वो पूरे का पूरा दे दिया है, पूरी साल में कितना हुआ, और जो रंजना का ड्राइंग है उसमें हमें हर महीने की अंत में लास्ट डेट को 1,200 विड्रॉ करती है. ओके, हियर एंड द लास्ट हमें कहा है कि कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट प्रिपेयर करना है. ओके, तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट प्रिपेयर किया है. सो हम यहाँ पे जो रंजना का और सुषमा का ड्राइंग है वो लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डेट कौन सी दी है, फर्स्ट रंजना सुषमा का दिया हुआ है, पर हमें पहले रंजना का लिखना पड़ेगा. सो हमने ड्राइंग अकाउंट प्रिपेयर किया है. डेट पर्टिकुलर रंजना और सुषमा इन दोनों का कॉलम अमाउंट में रहेगा. सेम वे क्रेडिट साइड ऑल्सो डेट पर्टिकुलर और रंजना और सुषमा का कॉलम अमाउंट में रहेगा. हम अपना बिजनेस 1st April 2016 से स्टार्ट करते हैं, तो उसका एंडिंग डेट होगा 30 April 2016. टू कैश अकाउंट इन रंजना's column 1,200. सेम वे इन May, इन June, इन July, इन August, इन September और अक्टूबर. सितंबर तक हम यहाँ पे लिख लेंगे और बीच में हमें लिखना है रंजना का, सुषमा का, क्योंकि इसमें डेट दिया है 1st October 2016 को सुषमा ने 8,000 का ड्राइंग किया था, इसलिए हमने लिखा कि 1st October 2016 टू कैश अकाउंट, और सुषमा की कॉलम में हमने 8,000 लिखा है. देन कंटिन्यू राइट डाउन 31st October टू कैश 12,000, 13 November टू कैश अकाउंट 1,200, 1st December to cash account 1,200, 31st January 2017 to cash account 1,200, 28 February 2017. Here we write down 28, not 29, because of here 17 is not a divisible by 4. यानी ये लीप ईयर है नहीं, जो लीप ईयर नहीं होता उसकी फरवरी की लास्ट डेट 28 होती है. सो टू कैश अकाउंट 1,200. देन 31st March, दिस इज आवर लास्ट एंडिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. टू कैश अकाउंट 1,200. देन हियर दिस अकाउंट इज क्लोज. How to close? So we count here first interest. So how many interest charges there? 10%. So first हम सुषमा का find out करेंगे. Okay? So
Sushma's 8,000, there is drawings, then multiply by which date they are given, 1st October, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 month का, so 6 by 12 और multiply by 10 upon 100, this is the percentage. And how many interest there is answer? 400. Okay, so we write down here on the last date 31st March 2017 to interest on drawings account. Here we prepare our drawings account, so we write down here our drawings interest, not in our capital account. Okay, so in Sushma's column 400, then find out the Ranjana's interest. So how to find out Ranjana's interest? So how many interest of Ranjana each and every month of end of the month? 1200, yani 1200. And when we withdraw end of the month, there is 66 divided by 12 and percentage 10%. So her interest is 660 rupees. We write down in columns Ranjana's. Okay, 666. Then we close this account and find out our balance. Okay, so add this and write down same here, and same addition is our capital accounts. We take from our capital accounts because of drawings, write down always in our capital account. 31st March 2017 by capital account 15,060 rupees and 8,400 rupees we write down in our capital account. Okay, see here to drawings account, date 31st March 2017 and figure 15,060 rupees and 8,400 rupees. Okay, then we read that as per the partnership deed, provide 5% interest on capital, यानी कैपिटल पर हमें 5% इंटरेस्ट देना है. सो रंजना की कितनी कैपिटल है? 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 5%. So her interest for 6,400. Same way Sushma's and Joseph's interest you find out 96,000 multiplied by 5%. So her interest 44,800. Then Joseph's 80,000 multiplied by 5%. So 4,000 it's a Joseph's capital interest. Okay, first entry we write down in capital account, then second entry we write down in our profit loss appropriation account on debit side. To interest on capital account, Ranjana 6,400, Sushma 4,800, Joseph's 4,000 and its addition write down in outer column 15,200. Okay. Then after incorporation of the above mentioned adjustment, 2% bonus is to be paid to Ranjana from the surplus of profit. यानी कि रंजना को हमें 2% प्रॉफिट पे कमीशन देना है. ओके, जब हमारा प्रॉफिट सरप्लस होगा तब. On 31st March 2017, partners have decided that total capital of the firm after the incorporation of the above mentioned adjustment, यानी ऊपर के जो हमने एडजस्टमेंट दिए हैं वो एडजस्टमेंट कंप्लीट करके हमें इनकी कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए डिसाइड करनी है. और कितनी रहेगी उनकी टोटल कैपिटल? 3 लाख. और उनका प्रोपोर्शन होगा कैपिटल का 2:1, यानी उनका प्रोपोर्शन है 2:1 में हम 3 लाख को डिवाइड कर देंगे.
Okay, then what this adjustment necessary account will be introduced or withdraw by the partners. यानी ये अकाउंट को मेंटेन करने के लिए यदि कोई पार्टनर को कैश कम है तो लानी पड़ेगी और ज्यादा है तो वो ले जाएगा। नेट लॉस, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 was 45,860, यानी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लॉस दिया हुआ है। इस साल उन्होंने लॉस किया है, कितना लॉस है तो 45,860 रुपीज। सो यहाँ पे लॉस है तो हमें जो हमने पेंडिंग रखा था सुषमा का 2% कमीशन वो अब देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट पे देना है, लॉस पे हम कोई कमीशन देते नहीं है, इसीलिए सुषमा का जो कमीशन है 2% वो हम काउंट करेंगे नहीं। ओके, अब हम ये हमारा सम फिनिश हुआ, पर अब हम यहाँ पे हम बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे, कैसे करते हैं। सो सी हियर, टू बैलेंस अकाउंट 3 lakhs, हमें कैपिटल कितनी रखनी है अब तीनों की मिला के 3 lakhs। सो उसको हमें डिवाइड करना है 2:1 में, ये उनका कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। सो हमें रंजना की कैपिटल कितनी होगी तो 3 lakhs मल्टीप्लाई बाय 2/5, सो उसकी कैपिटल आएगी 1,20,000। सो हमने यहाँ पे लिख दी। सेम प्रोपोर्शन सुषमा का भी है तो उसका भी 1,20,000 आएगा, और जो जोसेफ है उसका उन्होंने से हाफ है, यानी 1 प्रोपोर्शन है। सो जोसेफ को 3 lakhs multiply 1/5, so 60,000 it's a Joseph's capital। ओके, ये कैपिटल रख के अब हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे। ओके, उससे पहले हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करना है। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड का ज्यादा है, यानी कि इस साल एक्सपेंस ज्यादा है। सो यहाँ का बैलेंस हुआ 61,060 रुपीज, वही बैलेंस हम क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे, और उस बैलेंस में से हम जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है 1,060 रुपीज कट करके जो हमारा न्यू फिगर मिलेगा, यानी वो मिलेगा, वो होगा डिविजिबल लॉस। ओके, सो ये डिविजिबल लॉस हम किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे 2:1? नो, बिकॉज ऑफ दिस इज द कैपिटल इंटरेस्ट। वी नीड हियर प्रॉफिट लॉस रेशियो 5:3:2। कितना है उनका कैपिटल रेशियो 5:3:2 है। इस प्रोपोर्शन में हमने ये डिवाइड किया है, कैसे करना है वो भी आपको मालूम है। कैसे, तो मैं एक का दिखाती हूँ, बाकी का 2 का आप उसी तरीके से कर सकते हो। जैसे हमने रंजना का फाइंड आउट किया है 60,000 हमारा बची हुई फिगर है, मल्टीप्लाई बाय 5, और इन तीनों का एडिशन है 10,000, सो इनका आया 30,000 रंजना का। सेम वे यू फाइंड आउट सुषमा's on Joseph's and its addition is there. Okay, and this profit write down on credit side in appropriation account, so we transfer then our partner's capital account, that time we write down on debit side because of cross entry given there. So 31st March 2017 to profit and loss appropriations account, in Ranjana's column 30,000, Sushma's 18,000, or Joseph 12,000. Okay, then we close this account. First we find out our balance. So what we find out here? We find out a cash. Okay, so how many figure, how many cash they take or given. Okay, take from our form or given to our form. Okay, so first we take Ranjana's column. Ranjana's column
these three items add then make 1,65,060 rupees. Same addition we write down here because of debit side is more. Okay, then we got our 1,28,000, 6,400. Then we find out this figure and this is the cash by cash account, यानी कि रंजना को 30,660 रुपीज फॉर्म में लाने हैं. ओके, क्योंकि उसकी कैपिटल कम है. सेम देन वी फाइंड आउट सुषमा's column. Sushma's columns debit side is more, so 1,46,400 we write down same balance also here and cut from this balance these two figures. Then we find out this figure 45,600. This figure also Sushma's gives to form. Okay, यानी कि सुषमा को भी ये फिगर लानी है. कितना कैश लाना है तो 45,600. Then we close the Joseph's column. Here Joseph's columns is debit side, credit side is more. So 80,400, 84,000. Then we write down same balance on debit side also and cut 12,000, 12,000. यानी बचा कितना? उसमें से 12,000 और 60,000 ये दोनों फिगर कट करनी है तो उसका बचा कितना? इतना बचा 12,000 और वो 12,000 उसको फॉर्म दे देगा, यानी फॉर्म गिव टू जोसेफ को इतनी रकम 12,000 फॉर्म देगा. ओके, यानी कि जोसेफ को 12,000 रुपीज वो घर पे ले जा सकता है. नॉट अ पर्सनल यूज बिकॉज ऑफ दिस इज और एक्सेस ऑफ कैपिटल. वो उसकी कैपिटल का ज्यादा पार्ट है, 60,000 से ऊपर का जो पार्ट है वो ले जाएगा. ओके, सो फ्रेंड्स हियर रंजना एंड सुषमा give the capital give the cash to the firm and Joseph's take to the firm's 12,000 rupees. Okay.